Hello students, myself Professor K.K. Chaudhary. Today we will discuss about the excretory system of the prawn. Excretory system of prawn. The prawn excretory system contain a pair of the kidney called antennary or green gland and a median sac called the renal sac. तो the antennary gland फर्स्ट है एंटीनरी ग्लैंड. The antennary glands, these are present in the coxa. कहाँ पे प्रेजेंट हैं? कोक्सा में. कोक्सा ऑफ द एंटीना. Each gland is small and white in small in size. बहुत छोटा होता है और white in color. And each gland have the 3 parts. Three parts. First, end sac. Second, labyrinth, या आप इसको ग्लैंडुलर प्लेक्सस भी कह सकते हो. ग्लैंडुलर प्लेक्सस. एंड थर्ड वन इज ब्लेडर. तो फर्स्ट, दिस इज द डायग्राम. This is the excretory system of the prawn. And first one, this is the end sac. This is the end sac. And second, this is the labyrinth. And this is the excretory pore. Yeah, you can say this is the renal pore. And this is the ureter. These are the lateral ducts.
this is the transverse connective, and this is the renal sac. And third, this is the bladder. So we will discuss one by one. The first is the end sac. This is the end sac. It is a small central part of the antennary gland. Its wall is folded inside. अंदर की तरफ इसकी walls folded होती हैं. It has the epithelium and the outer connective tissue. The cavity of the end sac contain a large lacuna and it open into the labyrinth by a pore. end sac. ठीक है कि भी सेंट्रल पार्ट है एंटीनरी ग्लैंड का. इट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द एंटीनरी ग्लैंड और इसकी वॉल्स हैं. दीज आर फोल्डेड इनसाइड एंड इट ओपन इनटू द लेब्रिंथ बाय ए पोर. एक पोर के थ्रू ये अंदर की तरफ ओपन होता है लेब्रिंथ के अंदर और इसके अंदर स्पेस होता है. दैट इज द लार्ज lacuna. This is the end sac. And second is the labyrinth. Labyrinth, what is the labyrinth? It is larger than the end sac. Second part, labyrinth or glandular plexus. It is larger than the end sac. It is a mass of branched excretory tubules. Excretory tubules का mass है. They held together by कनेक्टिव टिश्यू, जो आपस में एक दूसरे से कैसे अटैच होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा पैकेट्स लाइक स्ट्रक्चर्स में होते हैं. द लेब्रिंथ ओपन इनटू द ब्लेडर. दिस इज द ब्लेडर. द लेब्रिंथ ओपन इनटू द ब्लेडर किसके थ्रू? बाय द सेवरल ओपनिंग्स. The wall of each excretory tubule is formed by the excretory epithelium. This is the labyrinth. And third is the bladder. Bladder is a placed inner side of the end sac. ये आपका end sac है तो इसके ये वाला जो portion है that is the bladder, है ना. It open into the renal sac. ये renal sac है आपका. It open into the renal sac by किसके थ्रू? These are the lateral duct on both the sides. These are the lateral ducts. तो bladder open into the renal sac by the lateral ducts. It gives excretory duct या ureters. भाई excretory duct और ureters from its inner side. भाई दूसरी साइड में तो यह कहाँ पे खुल रहा है? लेटरल डक्ट के थ्रू रीनल सेक में खुल रहा है. लेकिन इधर इसके क्या है? यूरेटर्स, एक्सक्रीटरी डक्ट्स इनर साइड से. इट ओपन आउट बाय द एक्सक्रीटरी या रीनल अपर्चर. इट ओपन आउट बाय द एक्सक्रीटरी या रीनल अपर्चर on the inner side of the coxa of the respective antenna. उसकी साइड में ये ओपन हो जाएगा. फिर पहला पार्ट था एंटीनरी ग्लैंड. एंटीनरी ग्लैंड का हो गया. एंटीनरी ग्लैंड के 3 पार्ट्स हो गए, एंड सैक, लेब्रिंथ और ब्लेडर. इसके बाद सेकंड पार्ट आता है दैट इज द रीनल सैक. रीनल सैक. Renal sac क्या है? It is the larger median sac present beneath the dorsal shield. It cover the entire cardiac stomach. पूरे cardiac stomach को ये cover करता है. Anteriorly, it is connected with the bladder of each antennary gland by the
लेटरल डक्ट्स। ब्लैडर के साथ सभी एंटीनरी ग्लैंड का जो ब्लैडर है उसके साथ एंटीरियरली ये किसके थ्रू अटैच्ड है, दैट इज द लेटरल डक्ट। तो ये आपका रीनल सैक हो गया। फिर है कि भाई एक्सक्रीटरी सिस्टम की वर्किंग क्या है, काम कैसे करता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो द ग्रीन ग्लैंड परफॉर्म द एक्सक्रीशन एज वेल एज ओस्मोरेगुलेशन, कि दोनों काम करते हैं भाई, एक्सक्रीशन का रिमूवल ऑफ द वेस्ट मटेरियल एंड सेकंड इज द ओस्मोरेगुलेशन, रिमूवल ऑफ एक्सेस ऑफ द वाटर। तो फर्स्ट वी कंसिडर द एक्सक्रीशन। The green glands are supplied with blood by the antennary arteries. By the ultrafiltration, water and dissolved substances passes into the end sac. ठीक है, कि जो ग्रीन ग्लैंड है उसके अंदर क्या है, ब्लड सप्लाई हो रहा है, किसके थ्रू, एंटीनरी आर्टरीज के थ्रू, और एंटीनरी आर्टरीज के थ्रू ब्लड सप्लाई हो रहा है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, तो यहाँ पर आपका जो एंड सैक के अंदर यहाँ पे क्या होगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होगा कि वाटर एंड डिजोल्व सब्सटेंसेस पास्ड इनटू द एंड सैक, एंड सैक में आ जाएंगे डिजोल्व सब्सटेंसेस, देन फिल्ट्रेट पासेज इनटू द लेब्रिंथ। फिर लेब्रिंथ के अंदर फिल्ट्रेट, ब्लड से आया, ब्लड आया तो ब्लड का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से वाटर और डिजोल्व सब्सटेंसेस वो एंड सैक के अंदर आ गए। तो एंड सैक के बाद फिर फिल्ट्रेट आपका किस में आया, लेब्रिंथ के अंदर। वहां पर क्या हुआ आपका, बाय सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन द यूजफुल प्रोडक्ट्स आर रिटर्न टू द ब्लड इन द लेब्रिंथ। भाई यहाँ पे तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या हुआ है कि जो यूजफुल प्रोडक्ट थे वो भी फिल्टर हो गए, लेकिन फिर सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन यानी कि दोबारा एब्जॉर्ब, फर्स्ट टाइम कि दीज आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द स्टोमक, सेकंड रीएब्जॉर्प्शन इनटू द एक्सक्रीशन टाइम, है ना। बाय सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन यूजफुल प्रोडक्ट्स आर रिटर्न टू ब्लड इन द लेब्रिंथ, तो ब्लड के अंदर वापस आ जाएंगे। द यूरिन इज कलेक्टेड एंड इट फ्लो इनटू द ब्लैडर। भाई यूरिन कलेक्ट होगा और वो कहाँ पर आ जाएगा, आपका ब्लैडर के अंदर। द एक्सक्रीटरी फ्लूइड ऑल्सो कम हियर फ्रॉम द रीनल सैक। समझ में आई कि जो यूरिन कलेक्ट हुआ वो कहाँ पे आ गया, ब्लैडर के अंदर। दूसरा कह रहा है जो एक्सक्रीटरी फ्लूइड है रीनल सैक से, वो भी आपका कहाँ पर आ जाएगा, यहीं पे ब्लैडर के अंदर आ जाएगा। देन यूरिन इज पास्ड आउट थ्रू द यूरेटर एंड रीनल अपर्चर, यूरेटर से रीनल अपर्चर के थ्रू बॉडी से आपका यूरिन पास आउट हो जाएगा। देन सेकंड थिंग इज द ओस्मोरेगुलेशन। दिस इज द ओस्मोरेगुलेशन, यानी कि वाटर एंटर इनटू द बॉडी रेगुलरली बाय ऑस्मोसिस, ठीक है। इट इज कलेक्टेड एंड सेंट आउट बाय द ग्रीन ग्लैंड। The prawn possess the huge quantity of water with urine to maintain the osmoregulation, ठीक है, कि जो वाटर बॉडी के अंदर रेगुलरली एंटर कर रहा है ओस्मोसिस के थ्रू, वो कलेक्ट होकर के ग्रीन ग्लैंड के थ्रू बाहर चला जाएगा। तो प्रॉन क्या है, पासिस आउट द ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर, क्यों कि वाटर रेगुलरली बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है ओस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू, तो यूरिन के साथ वाटर भी रिमूव करता रहेगा साथ साथ टू मेंटेन द ओस्मोरेगुलेशन। तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द प्रॉन। थैंक यू।